बापू जी की जय, बापू जी की जय, बापू सुजान सिंह की जय। कृष्णा स्वामीनाथन साहब, सीनियर मोस्ट नेवल वेटरन सरदार सुजान सिंह जी को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां। भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना की। इसको देखकर हमारे सरदार सुजान सिंह जी की यादें ताज़ा हो जाएंगी। और सरदार सुजान सिंह जी की तरफ से शहरों means the main award of ocean be experience to all our Indian Navy. शॉल ओढ़कर वाइस उड़ाकर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन सर ऑनर करते हुए इसके साथ साथ उनको एक कैप लूज कर लीजिए, इसको सीधा कर लीजिए सर। एक बार सामने देखिए, आप विशेष आभार एडमिरल सर का, विशेष आभार कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस इंडिया की तरफ से उनके कैप्टन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब आए हुए हैं, वो प्रेजेंट करते हुए विशेष आभार आईएनएस इंडिया का, विशेष आभार आईएनएस इंडिया कमांडिंग ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पूरी शिप्स कंपनी का विशेष आभार। याद आ गया सर साइड में ये सभी एडमिरल सर will also be joining with you all. हमेशा उनको शाल देकर सम्मानित कर रहे हैं। एक विशेष स्मृति चिन्ह, हाँ ये लो। और ये इंद्र देवता की भी आज आशीर्वाद हो रहा है, बाहर बारिश भी हो रही है। ये एक विशेष स्मृति
साइज का है सर ये, वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। भारतीय नौसेना की to urban security, urban safety, all those things. Sir, I shared नौसेना के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी नौसेना के जो सर, बैठ जाइए। अध्यक्ष हैं हमारे आर हरीश कुमार जी उन्होंने पहुँचे हुए हैं और तीसरी बार उन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि आज सरदार सुजान सिंह विर्क जी का 102वां जन्मदिन है और चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के पद से वो रिटायर्ड हुए थे। करीब 23 साल उन्होंने अपने नौसेना के अंदर दिए। उनके पिता भारतीय सेना में ब्रिगेड मनमोहन सिंह जी, हम उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। ये मेरे चाचा जी के लड़के हो गए ना, इनके भतीजे हो गए। सर एक मिनट सामने बापू गैस Respected veterans of the city of Karnal, respected citizens of the city of Karnal, friends from the media, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. Today is a very happy occasion for all of us. We are celebrating the 102nd birthday of the senior most naval veteran Sardar Sujan Singh, and it's a matter of great pride and honor for all of us from the naval headquarters to be part of this very important occasion. We've come all the way from Delhi, but we may have come even from Mars if we had to be here on this very important occasion. सभी की ओर से मैं उनको सबसे पहले बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आपकी तरफ से और नौसेना की तरफ से समस्त भारतीय नौसेना के परिवार की ओर से उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ उनके जन्मदिन पर। I think the team from Delhi, coming all the way from Delhi to Karnal, has two big purposes. The first purpose, of course, is to participate in the birthday celebration of Sardar Sujan Singh Sahab and be part of it. And this is, just to signal to everybody concerned that veterans form a very, very important element of our lives in the Navy. And we honor veterans wherever they are. And this is a simple representation of that very fact that हम वहाँ से आए हैं to be with a very honored veteran who's a senior most veteran, or to spend a moment of happiness with him, to be with him on this important occasion. I think that is the first purpose of our staying here. We don't forget our veterans. We try and reach out to them. While the government of India may not have mandated it, the Indian Navy has two different organizations that have a full-time job as looking after veterans. One, of course, is a Commodore of the Directorate of Ex-Servicemen's Affairs. The Commodore who heads it is here himself. And then we have the Regimental System Officer here, the CRO from the Northern Region, Captain Sanjay Chamlial. These people go around, trace every single veteran wherever they are, make sure that they are happy, they are healthy. And हम नहीं कह सकते हैं कि हर बार उनको जब ज़रूरत पड़ती है हम उनके पास रहते हैं, बट ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि हमेशा हमारा वादा रहता है कि जब भी उनकी पुकार होती है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। The second broad purpose of our visit, of course, it's a happy coincidence that today is the 16th of August, and on the occasion of our Independence Day, we remember all the people who served the nation in uniform. And I think it is a tribute to all the veterans of Karnal, a large number of whom are here, that the nation is strong, the Indian Armed Forces are strong, the Indian Armed Forces are respected all across the world for being a very professional, being a very capable, being a very competent fighting force, simply because of all the work that you have done. So on behalf of all the serving members of the Indian Armed Forces, I express my gratitude, our collective gratitude to all the veterans for the service to the nation. This nation is strong simply because of you being in the Indian Armed Forces. हमारे मन में दो मकसद थे यहाँ पे आने का। सबसे पहला मकसद ये था कि आज बहुत ही शुभ अवसर है
सरदार सुजान सिंह साहब का जन्मदिन है आज 102nd। उसमें उनके खुशी में सम्मिलित होने के लिए हम दिल्ली से आए हैं। हमने सोचा कि हम बता दें सभी को कि भारतीय नौसेना अपने वेटरन्स को बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ हमेशा देखती है, और जब भी वेटरन का कोई खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हम कोशिश करते हैं कि पहुंच जाएं उनके पास और उनके साथ उनकी खुशी या गम जो भी है वो हम बांटें उनके साथ। आज बहुत ही खुशी का मौका है और हमें बहुत खुशी और गर्व का महसूस हो रहा है कि हम वहाँ से आए हैं उनके साथ उनका जन्मदिन मनाने के लिए। और हमारे जो जितने भी रेस्पेक्टेड वेटरन्स हैं उनको याद करते हैं और उनकी सेवा को याद करते हैं और उनको रेस्पेक्ट करते हैं ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। हम क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही पूरी नौसेना के लिए बहुत गर्व की बात है, और उन्होंने खुद अपना बहुत कीमती समय निकाल करके उन्होंने वो सुजान सिंह जी सबसे मेरी विजेंद्र जी सर एक बार सामने देखना सर, सामने देखो। चीफ साहब आगे देखो थोड़ा। सामने देखो, सामने 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 देखो। Now I request Honorable Commodore सब sir. कोई ने एक बार सामने सामने देखो बापू जी, इधर इधर कुत्ते देखो देखो। I request Executive Officer INS India sir, please. सर एक मिनट Sir, Prudent sir. Gratitude on behalf एक of मिनट सामने। यस Sardar Sujan Singh ji to all INS India. ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਕਰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਤੇ ਰਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ। 2 ਸਾਲ ਕਿਉਂ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ, ਉਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਝੋੜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੇਵੀ ਚ? ਨੇਵੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੇਵੀ ਚ ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਲਾਏ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। ਗੋਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਗੋਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦਾ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾ 'ਚ। ਉਹ ਗਵਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਚੀਫ ਦਾ ਮੈਂ ਚੀਫ ਐਮਐਸ ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਵਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੰਬਰੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਕੇ 2 ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ 2 ਡਿਸਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ कोई चोट नहीं लगी। वो फिर सिंगापुर से जाके साढ़े इंटैलीजेंस बनाया कि ड्राई जाके थोड़ी देर मरम्मत कर उतो पुर्तगाल वो अपने सारे इतों के जोड़े कागज सन सिगरेट ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਐਸੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ सब तो बड़ा ग्रेटिट्यूड मीडिया पर्सन ज़्यादा नहीं ख्याल अभी एडमिरल साहब सभी हमारे वेटरन्स हैं। आज 103 साल के अंदर प्रवेश कर गए हैं। परमात्मा इनकी सेहत ठीक रखे। इज़ अ जॉली पर्सन, बड़े नाइस पर्सन हैं ये और सोशल सामाजिक व्यक्ति हैं आज के युग में। 1944 में इन्होंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी। हम नहीं कह सकते इंडियन नेवी क्योंकि उस समय तो अंग्रेज़ों का राज था, वो रॉयल नेवी थी। रॉयल नेवी ज्वाइन की 1944 में
1947 में बंटवारा हुआ देश का, नेवी का भी बंटवारा हुआ। तो जैसे बताते हैं बापूजी हमारे पिताजी कि एक शिप कृष्णा और कावेरी 2 शिप होते थे। एक शिप जो है पाकिस्तान को मिल गया, एक शिप जो है इंडिया को मिल गया। ऑप्शन मांगी गई 3 तरह की कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हो। सभी नेवल जो भी ऑफिसर्स यहाँ छोटे कर्मचारी जो भी थे उनसे ऑप्शन मांगे थे कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हो, पाकिस्तान नेवी में, या इंडियन नेवी में जाना चाहते हो या कहीं नहीं। एक कहीं नहीं का खाना भी था। वो कई बार बड़ा हंसते हैं बापूजी। एक मेरा साथी था, उसने कहीं नहीं लिख दिया, उसके बाद उसको इंग्लैंड वाले साथी ले गए थे। तो इन्होंने उस टाइम अपनी ऑप्शन जो है इंडिया के दी थी, भारत के दी थी। तो ये भारतीय नौसेना में आ गए। उसके बाद हमने छोटे हुए देखा, क्योंकि सर्विस में हम साथ ही होते थे। काफ़ी बड़े बड़े शिप भी देखे, शिप पे पार्टी होती थी। विक्रांत के ऊपर मैं खुद छोटा होता 3 बार गया हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ विक्रांत शिप, इतना बड़ा शिप होता था उस टाइम। कब 1965 की बातें होंगी हैं। 64-65 में इतना बड़ा था कि उसके ऊपर 4 एरोप्लेन चढ़ जाते थे और उतर जाते थे। मैंने 4 एरोप्लेन खड़े हुए देखे उसके ऊपर, एक शिप के ऊपर 4 एरोप्लेन। फिर देखा है कि जैसे हैंगर होते उसको बोलते थे, जैसे हमारे यहाँ कंडा नहीं होता, फर्सी कंडा, ऐसे प्लेट होती थी उसके अंदर। फिर वो जहाज उतरता था और फिर वो नीचे चला जाता था और जहाज छुप भी जाते थे शिप के अंदर। वो टाइम भी हमने देखा है। फिर इन्होंने वहाँ भी बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि उस टाइम नेवी में फैसिलिटी नहीं थी। फिर 68 में ये रिटायर होकर आए, गांव में आए। गांव में खेती भी ऐसा था, ना तो बिजली होती थी, इंजन से अपना सिंचाई करो, बैलों की खेती होती थी। हालांकि ज़मीन ठीक थी, बापूजी ने खुद ज़मीन खरीद भी रखी थी। पर ये क्या करते थे, जैसे 4 नौकर थे और 5 हल थे, तो एक हल खुद चलाते थे, साथ में नौकरों के भी साथ खुद काम करते थे। उसके बाद थोड़े हम बड़े हो गए, ना तो ये बैठते थे ना हमें बैठने देते थे। बहुत काम करते थे, हमें भी लगाए रखते थे, ये करो वो करो। कितने साल हो गए अब और कौन से साल का इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है? अब इनको 4 साल से हम इनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो 4 साल से, वैसे 3 साल से तो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स भी आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छे मतलब गिफ्ट वगैरह भी इनको दे के जाते हैं। उससे इनका और उत्साह बढ़ गया। कितने साल तक इन्होंने सर्व किया है नेवी में? नेवी में देखो आप 44 से लेकर 68 तक, काफ़ी लंबा समय है। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट गुरजीत सिंह विर्क है, करनाल ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं। एक बात और बता दूँ जो हमें इनसे पता लगती है, आम तौर पे ना जो नेवी वाले होते हैं उनके कुछ सर्विस शिप पे होते हैं, उसको सी सर्विस बोलते हैं। कुछ सर्विस जो है वो ग्राउंड की होती है। इन्होंने करीब 18 साल जो है सी सर्विस की है। 18 साल बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को ऐसा मतलब करने का मौका मिलता है या करते हैं। और जो सी सर्विस होती है उससे एज कम हो जाती है आदमी की। इन्होंने सबसे ज़्यादा सी सर्विस भी की और फिर भी परमात्मा देखो इनकी एज भी मेरा सबसे लंबी है। कोई नेवी वाला जिया होगा, कोई जिएगा जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।